ویلکم بیک۔ شہرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما سابق امیدوار قومی اسمبلی بیرسٹر عقیل ملک نے ورک مین ایسوسی ایشن کے عہدیداران کی جبری ریٹائرمنٹ کو غیر قانونی طور پر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ نون لیگ فوری طور پر اس کی بحالی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بیرسٹر عقیل ملک نے پی او ایف اراکین ایسوسی ایشن کے سینئر عہدیداران کی جبری ریٹائرمنٹ کی مذمت کرتے ہوئے ان کی فوری بحالی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ کوہستان سیکریٹریٹ میں مسلم لیگ نون کے رہنما سابق امیدوار صوبائی اسمبلی راجہ سرفراز اصغر سید امجد حسین شاہ، راجہ عامر سید ملک امیر سلطان ملک ندیم کوہستانی اور دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ جبری ریٹائرمنٹ قابل مذمت ہے اور اس میں وفاقی حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ایسوسی ایشن کے عہدیداران جن کو جبری ریٹائر کیا گیا ہے انہیں فوری طور پر بحال کیا جائے۔ علاقے کی کاروباری سماجی شخص سید نوید عباس کی جانب سے اپنے دوست احباب کے لیے فش پارٹی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تقریب میں سید فرحت شاہ، سید غیور شاہ، سید اسد علی نقوی، سید قاصد حسین شاہ، وقار حسین شاہ، سید دستار علی شاہ، مہر کار حسن شاہ، جرار حیدر شاہ، محسن شاہ کاشی شاہ، باسط شاہ، قلب شاہ، ساقی شاہ، فرزند شاہ، ساجد شاہ، شجاعت شاہ، رانا اکرام، شہباز، عبد الباسط، ملک آفتاب، ارشد شاہ، ایڈوکیٹ سجاد شاہ، اشتیاق شاہ، نجم الحسن شاہ اور دیگر دوست احباب نے شرکت کر کے پارٹی کو چار چاند لگا دیے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ اپنے دوست احباب کو مل بیٹھنے کا موقع فراہم کرنا ہمارے لیے باعث عزت ہے۔ اس نفس النفسی کے دور میں ایسا اقدام ہے جبکہ دعوت قبول کرنا بھی سنت رسول ہے۔ ڈسکا اور گرد و نواح میں گزشتہ ایک ہفتے سے دھند کا راج ہے، جس سے حد نگاہ انتہائی کم ہو کر رہ گئی ہے اور سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دوسری جانب بھٹا مالکان حکومتی احکامات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے سموک پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں۔ مزید اس حوالے سے جان لیتے ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز عثمان حیدر سے۔ جی عثمان، بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، ڈسکا گرد و نواح میں شدید دھند کا راج ہے، جس سے حد نگاہ انتہائی کم رہ گئی ہے اور سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ شدید دھند نے ڈسکا گرد و نواح میں گزشتہ ایک ہفتہ سے ڈیرے جما رکھے ہیں، جس سے ٹریفک کی روانگی بھی متاثر ہے۔ ڈسکا سیالکوٹ لاہور موٹر وے کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ٹریفک حکام کا یہ کہنا ہے کہ گھر سے نکلتے وقت فوگ لائٹ کا استعمال کریں، غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ حادثات سے بچا جا سکے۔ یہاں پہ آپ کو میں یہ بھی بتا چلوں کہ صبح سے ہی آج ہلکی پلکی بوندا باندی کا ڈسکا میں سلسلہ جاری ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے، جس سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 3 روز تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر سموگ کی بات کی جائے تو سموگ پھیلانے کا سب سے بڑا سبب بٹا مالکان بن رہے ہیں۔ حکومت نے ہدایات جاری کی تھی کہ زگ زیگ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے، لیکن بدقسمتی سے ڈسکا انتظامیہ اس پر عمل درآمد کرانے میں بری طرح ناکام رہی اور حکومتی احکامات کو بٹا مالکان نے ہوا میں اڑاتے ہوئے زگ زیگ کا استعمال تو نہ کیا، لیکن کوئلہ لمبوں کا استعمال کرتے ہوئے اس سے اٹھنے والا زہریلا کیمیکل اور کالا دھواں جو ہے وہ سموگ پھیلانے کے ساتھ ساتھ مختلف بیماریاں پھیلانے کا سبب بن رہی ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فی الفور نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی سمندری میں مسلسل سموک کے موسم خوشگوار ہوتے ہی شہریوں نے مختلف پارکس کا رخ کر لیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سمندری سے اپنے نمائندے محمد طاہر سے۔ جی طاہر، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، سمندری میں اگر موسم کی بات کریں تو موسم جو ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے، انتہائی خوشگوار ہے، کیونکہ مسلسل سموگ کے بعد جو ہے وہ آج دھوپ نکلی ہے تو لوگوں نے جو ہے وہ دھوپ کو انجوائے کرنے کے لیے مختلف پارکوں کا رخ کیا ہے۔ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ آ کر، بچوں کے ساتھ آ کر جو ہے وہ اس خوبصورت اور خوشگوار موسم کو جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ بچے یہاں پر جھولے جھول رہے ہیں، شہری جو ہے وہ موسم کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ سر بتائیے گا، موسم بڑا پیارا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی، موسم کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں تو موسم تو واقعی آپ کے سامنے ہے کہ کتنا پیارا موسم ہے۔ یہاں پر دیکھیں آپ کتنی فیملی آئی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ دیکھیں سبزہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ یہاں پر پھولوں کی نمائش بھی لگی ہوئی ہے اور لوگ بڑا خوشی محسوس کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں اس موسم کو۔ اور اس موسم میں میرے خیال میں سب لوگوں کو باہر آنا چاہیے تاکہ موسم کو انجوائے کیا جائے۔ اور آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ موسم کے حوالے سے ہم سے پوچھ رہے ہیں اور ہم اور زیادہ بتانا چاہیں گے۔ جی بالکل، شہریوں کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ موسم بڑا خوبصورت ہے اور شہری جو ہیں وہ اپنی فیملیز کے ساتھ آ کر، بچے جو ہیں وہ یہاں پر موسم کو انجوائے کر رہے ہیں، جھولے جھول رہے ہیں۔ یہاں پر خوبصورت پھول جو ہیں اور یہاں پر خوبصورت سبزہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے جاذب نظر بنا ہوا ہے۔ لوگ جو ہیں موسم کو جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ دھوپ بھی نکلی ہے اور کیونکہ پہلے کافی دن جو ہے وہ سموگ کا سلسلہ جاری رہا اور آج جو ہے وہ دھوپ نکلی ہے تو لوگ جو ہے وہ موسم کو جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ جی
ज़ेर गर्दिश अफवाह को खत्म कराने के लिए PTI MNA गुलाम बीबी भरवाना ने वीडियो बयान जारी कर दिया है। चंद रोज कबल स्पीकर कौमी असम्बली से मुस्तफी मेंबरान PTI की मीटिंग के बाद उनके रजिस्टर हाजिरी और इस्तीफा न देने की खबर ज़ेर गर्दिश रही। पाक से सादात घरानों के लिए, मेरे पीर खाना, उनके पीर खाना, तमाम बुजुर्गान दीन के घरों के लिए ढेरों दुआएं। आलम इस्लाम पाकिस्तान के लिए ढेरों दुआएं। NA 11/5 PP 96 की अवाम, मेरे प्यारे बहन भाइयों के लिए बहुत 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 दुआएं। इस्तीफ़ा को लेकर वज़ाती पैगाम दे चुकी हूँ। इस पैगाम में एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि जिस तरह KPK हाउस इस्लामाबाद में पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में अपने हाथों से इस्तीफ़ा लिखकर बज़ाते खुद इमरान खान साहब के मैंने जब हवाले किया था, उस वक्त भी मैंने ये दरख्वास्त की थी अपनी पार्टी से कि इसको फिलफौर जमा कराकर इस पर अमल दरामद कराया जाए, ताकि किसी किस्म की कोई गलत फहमी या इबहाम न रहे। और अब भी अपनी पार्टी से ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि जिस तरह मैंने अपना इस्तीफ़ा बज़ाते खुद इमरान खान साहब के हवाले किया था, जिस पर मैं साहबजादा मोहम्मद महबूब सुल्तान साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने वो इस्तीफ़ा अपने हाथों से इमरान खान साहब को दिया था। और उस वक्त जिस तरह मैंने दरख्वास्त की थी, अब भी यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि इस काम को पाया तकमील पहुँचाया जाए, ताकि गलत फहमी और इबहाम की गुंजाइश न रहे और गलत खबरों से दिल आज़ारी न हो। बहुत शुक्रिया। डेरा गाजी खान में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। आटे के हुसूल के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख रमजान नदीम जी। आवाम को क्या मसाइल हैं, आगाह कीजिएगा। जी, इनका कहना है कि हम सुबह से लाइन में खड़े हैं और आटा मिल नहीं रहा, और काफी लोगों की कंप्लेन भी है यहाँ आटे का। हम तो घंटे से खड़े हुए हैं, 1 घंटे से अभी मिल नहीं रहा। ये आपको शनाख्ती कार्ड पर दे रहे हैं आटा? शनाख्ती कार्ड पे दे रहे हैं आटा। अच्छा, आप कब से ठहरे हुए जी? 1 घंटा हो गया खड़े हैं लाइन में, अभी नहीं है अभी तक नंबर। लेकिन आटे से आप मुतमईन है? इस आटे से? आटा जैसा भी है, क्या करे, गरीब आदमी कहाँ से लाए पैसे। जी, इनका कहना है कि आटा जैसा भी है, क्या करे, महंगाई है, खाना पड़ता है। कैमरामैन टीम के साथ शेख रमजान नदीम, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेट्रो 1 न्यूज, डेरा गाजी खान। कश्मीर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। आटा 140 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा है। आटे की किल्लत के खिलाफ STP की जानिब से तालुका सदर रफीक अहमद चन्ना की क़यादत में डिस्ट्रिक्ट अवामी प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। STP मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कश्मीर में ताजरों और फ्लावर मिल्स मालिकान ने महकमा खुराक के DFC की मिलीभगत से आटे का बहरान पैदा कर दिया है। कश्मीर जिले भर में आटा 140 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। गरीब दिहाड़ीदार मजदूर एक टाइम का खाना खाने के लिए सख्त परेशान है। सिंध हुकूमत के वुज़रा झूठ पे झूठ बोल रहे हैं कि सिंध 65 रुपए किलो आटा फरोख्त कर रहे हैं, मगर सिंध भर में आटा 140 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। गुजरावाला थाना फिरोजवाला के इलाके में चंद रोज कबल 2 भाइयों के कत्ल का मामला हल कर लिया गया है। दोनों भाइयों को कत्ल करने के वाले 3 मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। CPO गुजरावाला उमर सलामत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अख्तर हुसैन और सगीर हुसैन को कत्ल करने वाले 3 मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। CPO ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिमान में हैदर अली, तैमूर और अली रजा शामिल हैं और मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश होश रुबा इंकशाफात करते हुए बताया कि मकतूलीन भंग पीते और फरोख्त करते थे। मकतूलीन ने भंग के नशे में तैमूर को बदफैली का निशाना बनाया, जिसका बदला लेने के लिए तैमूर ने अपने दोस्तों हैदर अली और अली रजा के साथ मिलकर दोनों भाइयों को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। CPO ने बताया कि मुलजिमान की निशानदेही पर आले कत्ल बरामद करके मजीद तहकीकात की जा रही हैं। खानेवाल से आपको खबर देंगे, जहां पर खानेवाल में इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए RPO मुल्तान मोइन मसूद ने खानेवाल DPO ऑफिस में दरबार लगा लिया और खुली कचहरी का इनेकाद भी किया। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। क्या तफसीलात हैं आपके पास, नसीर बताइएगा। आपकी फराहमी को यकीनी बनाने के लिए RPO मुल्तान डॉक्टर मोइन ने जो है वो खुली कचहरी लगाई है, जहाँ पे जिला भर से सालीनों की जो है वो दरखास्तों की समाअत किया है। तो इसी पे बात कर लेते हैं। RPO मुल्तान सब देगा, खुली कचहरी लगाई है, दरबार लगाया था, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये रूटीन के काम हैं जो हमारे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं, गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी है कि खुली कचहरी फ्रीक्वेंटली होनी चाहिए, डोर स्टेप तक इंसाफ की पहुँच को मुमकिन बनाना चाहिए। दूसरे उसका एस्पेक्ट आपके सामने हमने दरबार किया है। इसके बाद इनकी वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स भी देखूंगा। अभी क्राइम मीटिंग इसके बाद शेड्यूल है। ये सारे काम वो हैं जो हमारे ज़ाहिर है मैंडेट का हिस्सा है
तो इसको करेंगे, कुछ मोटिवेशन करेंगे, कुछ नए टूल्स अपनाएंगे तो क्राइम फाइटिंग मेन जो है वो मुतमईन नज़र है। आज के जो दौरा है तो इंशाअल्लाह ताला रिज़ल्ट्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, सबको साथ लेके चलेंगे। तो इंसाफ होना चाहिए, क्राइम को फाइट होना चाहिए, लोगों की लाइफ एंड प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट होनी चाहिए, यही मोटो है। नया साल आ रहा है, लोग विन विलिंग करते हैं डिवीजन में, क्या कहना चाहेंगे? ज़ीरो टॉलरेंस है, गन व्हीलिंग जो भी करेगा उसको सीधा थाने में होना चाहिए और उसके खिलाफ जो कानूनी एक्शन है वो होना चाहिए। उसके तरीक़ाकार मीटिंग कर चुका हूँ, रेंज की मीटिंग भी कर चुका हूँ, इंस्ट्रक्शंस क्लियरली पास हैं, बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस। जी बिल्कुल, मिस्टर मौजूदी आरपीओ मुल्तान, इनका यही कहना था कि वन विलिंग करने वाले के साथ सख्त से निपटा जाएगा और इनका यही कहना है खुली शहरी का लगाने का ये मकसद लोगों के साफ फराहम किया जाए। लाड़काना में डीआईजी की सरबराही में डाकुओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। एक दिन में 2 पुलिस मुकाबले हुए हैं। पुलिस स्टेशन हैदरी के हदूद में पुलिस का डाकुओं से मुकाबला, जिसमें एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जिसकी शनाख्त आरिफ वल्द ओकान कोराई के तौर पर हुई है। गिरफ्तार मुलजिम जराइम की मुतादिद वारदातों में मुलविस था। तो दूसरी जानिब पुलिस स्टेशन हाकरान के हदूद में भी पुलिस का डाकुओं से मुकाबला हुआ, जिसमें एक डाकू गिरफ्तार किया गया, जिसकी शनाख्त शौकत वल्द मोहम्मद सालेह लाशारी के तौर पर हुई है। दोनों डाकुओं के कब्जे से शहरियों से छीनी हुई मोटरसाइकिलें और मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। फिरोजवाला निजी तालीमी इदारे की जानिब से तलबा के सालाना इम्तिहानात के हवाले से निजी हॉल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा की हौसला अफजाई की गई। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना अवेज निजी हॉल में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी राना अवेज, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोजवाला के इलाका कोट अब्दुल मालिक में निजी तलीमी इदारे की जानिब से एक निजी हॉल में जो है वो बच्चों के सालाना एग्ज़ाम के हवाले से जो यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया। इसी हवाले से मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है प्रिंसिपल मजीद इनसे जानते हैं। सर, क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से मेरा एक ही पैगाम है कि बच्चे मेहनत करें, मेहनत किसी की निराश नहीं है और बच्चे दिन लगा के या दिन मेहनत करके अपना नाम जो है वो रोशन कर सकते हैं और तलीम हासिल करें, तलीम के मैदान में आगे बढ़ें। और तलीम में एक बाहर हथियार है जिससे इंसान को पता किया जा सकता है, दुनिया को पता किया जा सकता है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि दुनिया को फतह किया जा सकता है। मेरे साथ यहाँ पर मेहमान ख़ुसूसी भी मौजूद हैं जो कि इस हाल में मौजूद है। मजीद इनसे भी जानते हैं कि सर आज बच्चों को इस मौके पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज जो है वो बड़ा क्लियर है और टाइमिंग है जो कि पहले ही मुख्तलिफ है। वैसे मैं इससे दोहराना चाहूँगा कि दुनिया हज़ारों जाती है तो सबका भी पसंद है, लेकिन आप हैरान होंगे कि वहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है कि पूरी दुनिया किसी तबका, किसी मुल्क, किसी नस्ल, किसी तबके से उसके ताल्लुक वो ये है कि एजुकेशन इज द ओनली सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम एंड फेथ इज प्रोग्रेस। दिस इज द ओनली पॉइंट जो कि मेरा मैसेज है कि हम सब जो ये पाकिस्तानी कर सकते हैं। कुछ पेरेंट्स हैं बच्चों को पढ़ा के, टीचर जो है वो बच्चों को सिखा के और जो प्रिंसिपल हैं और ऑर्गेनाइजर्स हैं वो अच्छे अदारे को इस्टेब्लिश करते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर बात सुनील का ये कहना है कि बच्चे जो हैं वो मेहनत करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, उसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अहम इजलास डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर शर्जील नूर चन्ना की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जफर अब्बास अब्बासी, असिस्टेंट कमिश्नर्स, तमाम सरकारी इदारों के अफसरान, स्टेक होल्डर्स, आबादकारों, अंजुमन ताजरान समेत दीगर मुताल्लिक़ा इदारों के अफसरान और नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास में बारिशों के बाद डी वाटरिंग, ज़रई सर्वे, पंपिंग स्टेशन की मजमूई सूरत-ए-हाल समेत दीगर अहम अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर शर्जील नूर चन्ना ने कहा कि जिन इलाकों में बरसात की वजह से मुश्किलात का सामना है उसको फौरी तौर पर हल किया जाए और तमाम तर सर्वे रिपोर्ट फराहम की जाए। उन्होंने पब्लिक हेल्थ के अफसरान को हिदायत दी है कि फौरी तौर पर हर गैर फाल पंपिंग स्टेशन को फाल किया जाए। इजलास के दौरान शहर समेत जिले भर में महंगी खाद के फरोख्त का गैर मयारी दूध और उसके इस्तेमाल, तजावुज़ात, सफाई सुथराई और दीगर अमूर पर डीसीओ खैरपुर ने असिस्टेंट कमिश्नर और चीफ म्यूनिसिपल अफसरान को हिदायत दी है कि कल सुबह से ही इन मामलों पर कार्रवाई शुरू कर दी जाए। जबकि इजलास में मुतफ़क़ा तौर पर फूड अथॉरिटी को भी फाल करने का फैसला किया गया है। इजलास में आबादकारों की जानिब से बरसात के बाद किसानों और आबादकारियों और हारियों में
ہونے والے نقصانات کے ازالے، بینکوں کے قرضے ریشیڈیول کرنے، زرعی کھاد کے سستے داموں فراہمی جیسی سفارشات اور تجاوزات پر محکمہ زراعت کے افسران کو سیر حاصل تجاویز دی گئی ہیں، جبکہ اس سلسلے میں مخصوص رپورٹ مرتب کر کے آفس کو فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ منڈی بہاؤالدین شہر اور گرد و نواح میں بارش میں بھیگ کر ٹریفک پولیس اہلکار کالج چوک اور شہر کے عام چوکوں پر ڈیوٹیاں کر رہے ہیں۔ منڈی بہاؤالدین شہر اور گرد و نواح میں بارش برسنے کے باوجود ٹریفک پولیس اہلکار کالج چوک، غلہ منڈی جیل روڈ اور دیگر اہم چوکوں پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ موسم سرما کی بارش میں ڈیوٹی کرنے والے ٹریفک پولیس اہلکار عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ تھانہ اگوگی کے علاقے میں 4 ڈاکوؤں نے پولیس پر اندھادھند فائرنگ کر دی، جبکہ اس بارے میں تفصیلات جو آئی ہیں وہ ہمارے نمائندے علی عمران کے پاس ہیں، اسے مزید جان لیتے ہیں۔ جی علی عمران بتائیے گا۔ بالکل تفصیلات کے مطابق اگوکی کے علاقہ میں 15 پر ڈھینگلے روڈ روڈس روڈ پر شہریوں کو لوٹنے کی اطلاع ملنے پر پولیس پارٹی کی پہنچنے پر 4 ڈاکوؤں کی اندھادھند فائرنگ، جس سے سرکاری گاڑی کی سکرین پر فائر لگے۔ پولیس پارٹی نے فوری حفاظتی اختیاری میں گاڑی کی آڑ دے کر اکا دکا فائر کیے، جبکہ ملزمان آگے پیچھے فرار ہونے کی غرض سے بھاگتے ہوئے فائرنگ کرتے رہے۔ اسی دوران اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار۔ زخمی حالت میں گرفتار ڈاکوؤں کی شناخت علی عمران عرف مانی اور وقاص عرف علی عباس عرف نونا کے نام سے ہوئی، جبکہ ڈاکوؤں کے 2 ساتھی فائرنگ کرتے ہوئے دھند اور اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے۔ واقعہ کی اطلاع پر اے ایس پی صدر سرکل جواد اسحاق پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے اور فرار ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے کر علاقہ میں سرچنگ کی جا رہی ہے۔ گرفتار ملزم علی عمران عرف مانی، وقاص عرف علی عباس عرف نونا مختلف تھانہ جات میں رابری اور ڈکیتی کی متعدد مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہیں۔ ملزمان کے قبضہ سے اسلحہ، 2 عدد موبائل فون، نقدی، شہریوں سے چھینی گئی 2 عدد موٹر سائیکلیں برآمد۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ کے باوجود بہادری سے مقابلہ کرنے پر ڈی پی او سیالکوٹ نے ایس ایچ او گوکی راجہ احمد کو شاباش دی۔ شہریوں کے جان و مال پولیس پر حملہ کرنے والے قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ علی عمران، میٹرو 1 نیوز، اگوکی، سیالکوٹ۔ میرپور خاص جماعت اسلامی کی جانب سے بلوچستان میں حق دو تحریک کے حوالے سے اس سلسلے میں کہا گیا ہے، اور میرپور خاص میں کہا گیا ہے جماعت اسلامی کی جانب سے بلوچستان کو بھی اس کا حق دیا جائے۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جماعت اسلامی کی جانب سے مختلف شہروں کے اندر اس طرح کے کہا جا رہا ہے کہ ان شہریوں کو ان کی جانب سے حق دیا جائے، اور بلوچستان میں بھی اسی طرح سے حق دو بلوچستان کو حوالے سے جماعت اسلامی کی جانب سے کہا گیا ہے اور ان کی جانب سے یہ احتجاج کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں میرپور خاص میں جماعت اسلامی کی جانب سے بلوچستان حق دو تحریک کے خلاف انتخابی کارروائی کے خلاف مدینہ مسجد چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ میرپور خاص جماعت اسلامی کی جانب سے کیے جانے والے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ بنیادی آئینی حقوق کو مانگنا گوادر عوام کا جرم بنا دیا گیا ہے۔ ہزاروں مرد و خواتین گزشتہ 1 ماہ سے اپنے مطالبات کے حق میں پرامن دھرنا دیے بیٹھے تھے۔ بے گناہ نہتیہ پرامن شہریوں پر بدترین تشدد اور گرفتاریاں بنیادی انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ حقوق دینے کے بجائے ریاستی تشدد کی پالیسی بلوچستان کے عوام میں نفرت بڑھانے کا سبب بن سکتی ہے۔ حکمران ہوش کے ناخن لیں۔ گوادر بلوچستان حق دو تحریک کے روح رواں مولانا ہدایت الرحمان بلوچ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف انتخابی کارروائیوں کو ختم کیا جائے۔ اس موقع پر احتجاج میں شامل افراد نے اپنے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ بلٹن کا سلسلہ جاری ہے، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد، دیکھتے رہیے میٹرو 1 نیوز۔ ویلکم بیک۔ شہنامے کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر دیں گے ناروال سے، جہاں پر محکمہ زراعت توسیع کی طرف سے کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر ناروال کی ہدایت پر کھاد ڈیلرز کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کریک ڈاؤن کے دوران تحصیل ظفروال میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت احسان الحق پنو نے کارروائی کرتے ہوئے احسان اللہ مینیجر تنویر برادر ظفروال کے خلاف تھانہ ظفروال میں مقدمہ درج کر دیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت تنویر احمد اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت احسان الحق نے کہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر محمد شاہ رخ نیازی کے خصوصی ہدایت پر ضلع بھر میں کھاد اور اوور چارجنگ کے حوالے سے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور کارروائی کا عمل بلا تفریق جاری رہے گا۔
SPC ऑफिस उमरकोट में मॉक ड्रिल्स गर्ल्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड स्कूल्स के उन्वान से सेमिनार इनेकाद किया गया। सेमिनार में शुरका को कंप्लेन रिस्पांस मैकेनिज्म, CRMM हॉक्स के इस्तेमाल मैकेनिज्म और फंक्शन के हवाले से आगाही फराहम की गई। तलबा के मसाइल और हैरेसमेंट और दीगर मामलात के हवाले से ब्रीफ किया गया। SSP उमरकोट और दीगर मेहमान ने तमाम प्रिंसिपल्स को CRM बॉक्स तकसीम किए। स्कूल और कॉलेजेस में आवेज़ करने के लिए हेल्पलाइन, बैनर्स और बोर्ड्स दिए गए, जिसमें SP ऑफिस और विमेन चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस और दीगर के हवाले से SHO विमेन के लैंडलाइन और मोबाइल नंबर्स दिए गए थे। SSP उमरकोट ने ऐसे तमाम इक़दामात में मुकम्मल बाहमी ताउन की यकीन दहानी करवाई है। उनका कहना था कि CRM बॉक्स के जरिए कम्युनिकेशन ऑपरेशन और डेटा रसाई में इंतहाई सहूलत और मदद फराहम होगी। सेमिनार में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बिलाल अहमद, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर सरोप चंद और प्रोजेक्ट मैनेजर शिवराम, SHO विमेन इंचार्ज विमेन और चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल महनाज अमान समेत दीगर ने शिरकत की। पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट चिन्योट के ज़ेर एहतमाम सालाना बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रेस्क्यू एहलकारों में तारीफ़ी असनाद तकसीम करने की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का इनेकाद मकामी इवेंट हॉल में किया गया। मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर चिन्योट फैसल अब्बास मांकट के अलावा डिविजनल एमरजेंसी ऑफिसर फैसलाबाद मियाँ मोहम्मद अशफाक, मारूफ समाजी शख्सियत CEO इकबाल राइस मिल्स, चौधरी मसूद इकबाल, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मैडम ताहिरा खान, मैडम नुमाइंद और दो दीगर नुमाइंदगान के साथ साथ मीडिया नुमाइंदगान और रेस्क्यू एहलकारों की कसीर तादाद ने इसमें शिरकत की। आपको बताएंगे पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट चिन्योट के ज़ेर एहतमाम सालाना बेहतरीन कारकर्दगी के हवाले से मुजाहरा करने वाले रेस्क्यू और दीगर एहलकारों में तारीफी असनाद तकसीम करने की तकरीब इनेकाद किया गया था। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये भी बताया चलें कि सिविल जज चौधरी कलीमुल्लाह भट्टी लोधरा की सरपरस्ती में एंटी करप्शन लोधरा ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस सिलसिले में थाना सिटी करोड़ पक्का की ASI अमजद हुसैन रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। ASI अमजद हुसैन से निशान ज़दा नोट भी बरामद कर लिए गए हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि इस सिलसिले में जहाँ पर सिविल जज चौधरी कलीमुल्लाह भट्टी लोधरा के सरबराही में एंटी करप्शन लोधरा ने कार्रवाई की है और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। इसी सिलसिले में थाना सिटी करोड़ पक्का की ASI अमजद हुसैन रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। ASI अमजद हुसैन से निशान ज़दा नोट भी बरामद कर लिए गए हैं। तहसील चौक सरवर शहीद में डिप्टी कमिश्नर कोर्ट अदू मोहम्मद हुसैन राना की हिदायत पर अलबसैन के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद ने चौक सरवर शहीद में करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी अराजी को वागुजार करा लिया है। चौक सरवर शहीद तहसील में सरकारी अराजी पर नाजायज काबजीन का कब्जा जारी था। सरावा मोड़ की कमर्शियल जगह पर 2 कनाल 5 मरले पर दुकानों की तामीर की जा रही थी। म्यूनिसिपल कमेटी सरवर शहीद की टीम के हमरा मौके पर पहुंच गई और जेर तामीर दुकानों को गिरा दिया। नाजायज काबजीन को किसी सूरत सरकारी अराजी पर कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर कोर्ट अदू मोहम्मद हुसैन राना की वाज़ेह हिदायत है। असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट अदू आमिर महमूद का कहना था कि सरकारी अराजी सरकार की अमानत है। सरकार का एक एक मरला रिकॉर्ड में अपडेट किया जा रहा है, जो नाजायज काबिल से वागुजार करा दिया गया है। कोटरी साइट में बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से इलाके मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर जामशोर के ऑफिस में के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। समाजी रहनुमाओं नजीर बलेदी, अल्लाह रखियो चांडियो, सदीर चांडियो, शहबाज मेमन की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी रखते हुए DCO जामशोर ऑफिस के सामने पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने मीडिया को बताया कि KMC पुल्हाड़ी में बुनियादी सहूलतें न होने के बराबर हैं। लाड़काना से आपको खबर देंगे, जहां पर अतातुर्क टावर पर सिविल कपड़ों में रेडी लगाने वालों से भत्ता वसूल करने वाले भत्ताखोर नौजवान की वीडियो वायरल हो गई है। शहर में इस वक्त ट्रैफिक जोन कायम है। हर एक जोन से रोजाना की बुनियाद पर 50 से 60 हजार रुपए तक की रिकवरी की जाती है, जिनमें ट्रैफिक सर्जन इमदाद शेख मुलविस है।
जिन पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें रेशम गली, बंदर रोड, बाकरानी रोड, स्टेशन रोड से भत्ता वसूली के स्कैंडल्स कई बार मीडिया पर आते रहे हैं, लेकिन बासर होने की वजह से कोई एक्शन नहीं लिया जाता, जिसके बाद शहरी अजाब में मुब्तला हो गए हैं। ताहम शहरियों ने DIG लाड़काना, SP लाड़काना और मुतालिका हुकाम से इसका नोटिस लेने का मुतालबा किया है। डिप्टी कमिश्नर कोटद्दू मोहम्मद हुसैन राना की हिदायत पर जिले भर में शुगर क्रशिंग सीजन के दौरान गैर कानूनी कुंडों का इस्तेमाल करने वाले मालिकान के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। इस सिलसिले में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मोहम्मद तलहा शेख ने ब्रीफिंग के दौरान बताया कि कोटद्दू मोहम्मद हुसैन राना की हिदायत पर गन्ने के काश्तकारों और किसानों को इस्तेहसाल से बचाने के लिए जिले भर की शुगर मिल्स की कड़ी निगरानी की जा रही है, जबकि गैर कानूनी कुंडाजात मालिकान और मिडिल मैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का दायरा कार भी बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने मजीद बताया कि हुकूमत आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए खास तौर पर किसानों के मफादात का पूरी तरह ख्याल रखने के लिए तमाम इक़दामात बुरे कार ला रही है। गन्ने की खरीदारी सरकारी रेट के हिसाब से हर सूरत में मुमकिन बनाई जा रही है। किसी किस्म की नाजायज कटौती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओबाड़ो लाइसेंस शुगर मिल में नौजवान मुलाजिम जुनैद मलिक के कत्ल का मामले में मुलजिमान पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका है। अदालती हुक्म के बावजूद ओबाड़ो पुलिस मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से गुरेजा है। वर्सा का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज घोटकी ने मिलकर इंतजामिया के 5 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। गुज़िश्ता 4 घंटों से अदालती हुक्मनामा लेकर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए थाने पर मौजूद हैं। SHO ओबाड़ो और मेहरर मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे। IG सिंध से अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। खुशाब से आपको खबर देंगे, जहां पर खबर पहुंचाना जुर्म बन गया है। कायदाबाद में सहाफी पर तशद्दुद का वाकया पेश आया है। खुशाब कायदाबाद में जे जंग चैनल के सहाफी मोहम्मद आसिफ शहजाद को जालिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नामालूम मुसल्लह अफराद ने अचानक कातिलाना हमला करके सहाफी को जख्मी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर हमला करने वाले नामालूम अफराद तलाश करके उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और मुजरिमों को कैफारे किरदार तक पहुंचाया जाए। आपकी तहसील कायदाबाद में जहां पर डाकुओं को डकैती करते देखना सहाफ़ी का जुर्म बन गया। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी आसिफ शहजाद मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि पुलिस की जानिब से अब तक क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है। जी बिल्कुल, ये जो अफसोसनाक वाक़या है ये मेरे साथ पेश आया। मैं अपने रात को वापस आ रहा तो देखा तो डाकू जो हैं 3 बंदे वो हमारी लकड़ियाँ चोरी कर रहे थे, और जब मैंने उनसे पूछा भाई आप ये क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। मारने के साथ जब मैं हॉस्पिटल पहुंच गया, मैं थाने में इत्तला की, तो उस वक्त जो है हमारे जो थाने वालों ने हमें कहा जी आपकी कंप्लेन दर्ज हो गई। फिर हमने कंप्लेन के बारे में पूछा, बारहा पूछते रहे कि हमारी FIR क्यों नहीं काटी गई थाने में, तो उन्होंने हमें बताया कि वडेरों ने हमें मना करके रखा है कि हम आपकी FIR नहीं लिखेंगे। जब एक साफ़ी के साथ इतना जुल्म हो रहा है, इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है कि यहाँ पे जो है हमारी FIR नहीं काटने दी जा रही और हमें सुलह पे मजबूर किया जा रहा है। मेरी तमाम वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब से गुजारिश है कि हमारी फिलफौर FIR दी जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि IG पंजाब वज़ीर आला पंजाब इस वाक़े का नोटिस लें और सीनियर सहाफ़ी आसिफ शहजाद की FIR काट कर इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। सादखाबाद से आपको खबर देंगे, जहां पर चोलिस्तान में नमकीन पानी की खूबसूरत झील मौजूद है। उसका पानी नमकीन है और लोग इस नमकीन पानी से नमक तैयार करके कारोबार के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं सादखाबाद से बताएंगे करमदीन जतोई अपनी इस रिपोर्ट में। सादखाबाद से 80 किलोमीटर के दुश्वार गुजार फासला पर चोलिस्तान में नमकीन पानी की सैकड़ों एकड़ अराजी पर फैली खूबसूरत झील मौजूद है, जिसमें नमक की बड़ी मिकदार पाई जाती है। दुश्वार गुजार रास्ते से होते हुए लोग नमक के हसूल के लिए इस झील तक पहुंच जाते हैं। मकामी अफराद के मुताबिक इस झील में जमा होने वाला पानी ज़मीन में सेम की बदौलत है, जो कि नमकीन पानी होने की वजह से नमक की शक्ल अख्तियार कर लेता है, जबकि कारोबार के हसूल के लिए दूर दराज से लोग आकर झील से इस नमक को निकाल कर बाहर जमा कर देते हैं, जो कि 1 हफ्ते में खुश्क हो जाता है, जिसके बाद बड़ी गाड़ियों पर लोड करके शहर मुंतकिल किया जाता है।
ये नमक जानवरों की खालों को लगाने के अलावा आइसक्रीम और कुल्फियों की तैयारी में भी इस्तेमाल करके पैसा कमाया जाता है। शहनामे सब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।